Hello. So we are here trying to make a strategy for the upcoming mains 2024. अपने लिए this is my personal accountability exercise here. So mains की preparation will be incomplete without the writing practice. Because last year I had given 2023 mains, and what I lacked in was writing practice. और ultimately mains के battleground में the tool you yield is your pen, and the parameter of judging you will be your writing. So, writing practice is the most essential part of the mains preparation, and there is no doubt in this. And we have established this for ourselves for now. So, we look at these two aspects of answer writing. One of this is writing the answers, the kinds of questions the UPSC asks, and the space you have and the time it takes mastering the answer writing process. That is, you have 6 different question papers. The language ones of I'm not going to here address that. GS1 deals with history, social studies, basically a lot of social studies, uh, history and geography. GS2 is also social studies, but it deals in particular with polity and the governance, and this deals with geography and history. All right, and there's society, which is here, which is also here, and which is also here. GS3 mainly deals with many different subjects. There's environment, there's disaster management, there's economics, there's science and tech, and there's internal security, agriculture included. So, and GS4, this is the ethics paper, and जितना जितना ज़्यादा we discuss about these things, we think about these things, उतना हमें फ़ायदा है मेंस के टाइम पे. अल्टीमेटली ऑल राइट. सो ऐसे है, ऐसे का 2 एसेज देते हैं, 2 एसेज लिखने होते हैं 3 घंटों में. सो ऐसे प्रैक्टिस भी ज़रूरत है. मुझे ऐसा लास्ट ईयर लग रहा था कि ऐसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डील करके आ जाऊँगा, बट नाउ आई हैव कम टू हैव फाउंड सम अच्छे स्ट्रक्चर्स फॉर एसेज. जैसे इंट्रो में, इंट्रो को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके एक एक पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए, इस लेवल का कस्टमाइजेशन हो चुका है. एंड दोज आर दी एसेज विच गेट consistently good marks because there's a structure to it. और ऐसे in just the case of UPSC नहीं बोल रहा, in any writing exercise, if you're writing an essay and if there's a structure to it, it's easier to make a good essay when you have a structure. I mean, your ideas might be brilliant, but the way you arrange them might at many times be uh, traveling of your ideas forth and back, and for the reader it will not be a smooth experience. So if there is a structure present already that you use to express your ideas, it is for the reader. Ultimately it will be the reader who is going to judge your essay, and it's not you who is going to judge your essay, right? You might have फेल्ट कि आपने दिल से लिख दिया सब कुछ, पॉइंट्स अच्छे से सब कवर कर दिया है, वेरी सेटिस्फाइड. बट द रीडर हैज़ टू बी एबल टू feel the same kind of satisfaction after reading your essay as you have felt. और वैसा अगर रीडर को फील कराना है तो there have been some structures, some methods, etc. evolved to help you with this process. So we'll explore essay, and there's optional different kind of answer writing.
तो ये बस आंसर राइटिंग के 6 तरीकों के आंसर राइटिंग हैं ये। इसमें भी अंदर डिफरेंसेस होते हैं। गवर्नेंस के आंसर कुछ तरीके के होते हैं, आईआर वगैरह वगैरह। ठीक है, गवर्नेंस इन पर्टिकुलर इज अ बिट ट्रिकी यार, ट्रिकी। एंड आई मीन इफ यू डू वेल, इफ यू कैच द nerve of it, then शायद you'll also be able to use governance to score more. So that's what is about the answer writing part, कि ऐसे 6 types के different answers हमें लिख लिख के practice करने हैं. That is one thing. And the other thing is now notes. देखिए एक है static syllabus, standard sources, etc. Right. एक चीज़ ये है कि यू हैव द मेन सिलेबस, ठीक है। ऐसा मेन सिलेबस को एड्रेस किया बिना हाउ विल यू स्ट्रेटेजाइज फॉर मेंस? सिलेबस एंड PYQs आर essential two pillars of mains preparation. So syllabus में there are topic wise things mentioned, all right. So each of the topic has dimensions and possible questions, and latest something must be going on in the news, and so that becomes a possible angle of questioning. And you also can gauge something from the PYQs. So when you pick up a topic to finish, you go through the PYQs and you go through the news items. You have to, I mean, put some effort to find out what has happened in relation to this topic. ऐसे पढ़ना चाहिए. Now there are standard sources. They are not so standard कभी कभी, because they people pick up mains 2024, राउस का कंपास वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे सोर्सेज और स्टैंडर्ड जो हिस्ट्री के बुक्स होते हैं वो पढ़ते हैं. तो बहुत सारे देर आर बुक्स यू हैव टू फिनिश. बट उसके अलावा स्टैंडर्ड सोर्सेज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि इस साल हम सब कोई प्रहार पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, ऐसे कोई डिसाइड नहीं कर रहे. इंडियन एक्सप्रेस के बारे में मुझे आई हैड टू स्ट्रेटेजाइज अ बिट. तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे सब कोई, जैसे आइडियली वन शुड प्रिपेयर करंट अफेयर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, मतलब वन इज एक्सपेक्टेड टू, बट वो होता नहीं है. देन दे गो फॉर मंथली मैगजीन्स एंड दे गो फॉर PT 365 etc. So ऐसा होता है. But because I've been collecting, I've been liking the language of Indian Express, and also I have quite some experience with multiple times attempting these different stages of this exam. So I've gone through the syllabus thoda multiple times, and I've gone through purane mains ke materials also, PTs and mains 365 etc. So now I have decided to improve my arguments, statements, my language, the quality of my answers, etc. So there needs to be something different done than what I had been doing. And Indian Express, the language of it is perfect. I mean, मैं ये सोच के इंडियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ. इंडियन एक्सप्रेस देख के मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई शुड बी डूइंग. आई हैड ऑलवेज बीन ट्राइंग टू रीड हिंदू, बट जब से मैंने इंडियन एक्सप्रेस शुरू किया है तब से आई मीन रियली अब यही रास्ता मैं बना चुका हूँ. तो काफ़ी टाइम्स आई हैव बीन कलेक्टिंग एडिटोरियल्स एंड मेकिंग एक्सट्रैक्टिंग डेटा. जैसे आई हैव ऑलरेडी शोड इन वन ऑफ द वीडियोस कि आई वाज एक्सट्रैक्टिंग, दिस इज डेटा एक्सट्रैक्शन. बट वहीं पे नहीं रुक जाता है काम. फॉर मेंस द थिंग इज द डेटा should not be stored in the form of numbers or symbols etc. मतलब ये कोबाल्ट ये मतलब जो आंसर में you're going to write मेंस में, the answer you want to write, उसमें जिस form of representation में आप उस डेटा को देना चाहते हैं, उस form of representation में
you should store it. So my data extraction is the initial step, and from the data extracted, I'm going to store it in statements. Now statements में स्टेटमेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और डेटा भी होता है, और ईदर सिर्फ डेटा या सिर्फ आर्ग्यूमेंट भी मेरे लिए स्टेटमेंट है. तो आई एम गोइंग टू कलेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम दीज एडिटोरियल्स, एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मेक आर्ग्यूमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स में इनहेरेंटली बी मेड ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन और डेटा. तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, उसी में मैं चीज़ें स्टोर करूँगा, और जो भी छोटे मोटे डायग्राम या डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाना पड़ेगा कि कोबाल्ट ये कॉन्गो में मिलता है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोबाल्ट यहाँ मिलता है, चाइना में रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, मतलब कितना मोनोपोली है उनका, कितना परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज दे ओन, ABC ट्रायंगल में क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया वगैरह. मैं लास्ट आर्टिकल की ही बात कर रहा हूँ. तो वैसे आई एम गोइंग टू extract data and makes arguments, write the entire statement. जैसे मेंस में लिखने वाले हैं आंसर, वैसे I'll make the entire statement and नीचे I'll provide the necessary numbers. ऐसे I'm going to store these things in this format. I'm going to emphasize on writing the entire statement. मतलब इस केस में अगर डेटा है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट में, तो आप बताओगे कि नंबर 1 पे ये है, सबसे कम ये है, कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है. तो स्टेटमेंट भी लिखेंगे एंड डेटा भी देंगे. मतलब अगर डेटा नहीं दे पाए तो भी स्टेटमेंट काम आएगा. ये है तैयारी. अगर डेटा याद नहीं आया एंड वी आर नॉट एबल टू मेक दीज थिंग्स, फिर भी अपने स्टेटमेंट में इतना माल होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए कि इट विल वर्क. तो वैसे स्टेटमेंट भी लिखेंगे, साथ में डेटा भी लिखेंगे. डेटा अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे. सिर्फ डेटा जैसा है वैसे उसको छोड़ नहीं देंगे. डेटा से हम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और डेटा को भी स्टोर कर रहे हैं. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम डेटा प्रोसेस करके, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट में जाने वाला सीधा माल. So this is what we are going to make. Also there's UPSC Essentials of Indian Express. This is the monthly magazine and ये मिल जाएगा ऑनलाइन आपको. So इसमें से भी, इसमें और एडिटोरियल्स में क्या डिफरेंस है is magazines में this comprehensive coverage of the entire thing. Editorials में they might just talk about a recent Changi mission of China, but editorial में they'll talk about more than that. They'll talk about earlier दूसरे countries के missions to China and maybe Chinese space exploration history and what they are doing currently. Editorials में भी काफ़ी information होता है, but UPSC Essentials essentially covers everything relevant to the UPSC. So monthly magazines essentials में से भी statements collect होंगे, but statements के साथ सब structures भी collect करने हैं. आंसर में दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो आर्ग्यूमेंट्स, अपने स्टेटमेंट्स जो अपन बनाएंगे, उसके साथ द स्ट्रक्चर मतलब उस चीज़ को कितने डायमेंशंस में बेसिकली तोड़ा जा सकता है या कौन से एंगल्स हैं, ये सब चीज़ें हम पहले से फ्रेम करेंगे. मंथली मैगजीन से लेंगे. एडिटोरियल्स में भी एक्चुअली एडिटोरियल्स में ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे मैगजीन से ज़्यादा, बिकॉज मैगजीन एक होलसम कवरेज ऑफ टॉपिक है, बट एडिटोरियल इज़ एन आर्ग्यूमेंट. तो एडिटोरियल में अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. और इन तो बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस से वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स. So from the IE notes and essentials, we are going to take statements, and statements we have discussed कि क्या होंगे उनमें. उनका एक सीक्वेंस भी होगा, एक आर्ग्यूमेंट होगा एंड द डेटा एंड द स्ट्रक्चर्स मतलब कोई भी इशू को एड्रेस करने के लिए व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स परहैप्स. उसमें ऑफ कोर्स सिर्फ हेडिंग नहीं याद रखना है, ठीक है. हेडिंग के आगे क्या स्टेटमेंट है उसके वजह से हेडिंग बनता है, ना कि हेडिंग लिख के उसके बारे में कुछ लिखेंगे. ये थोड़ा सा लोगों को अजीब लगा होगा.
जनरली ऐसा अप्रोच है कि सोशल लिख के सोशल एस्पेक्ट का कुछ ऐसे तब के तब सोच के फिर नीचे एग्जाम्पल ऐड करके लिखते हैं। बट आप ये सोचिए कि इफ़ योर स्टेटमेंट योर आर्ग्यूमेंट इज़ ऑलरेडी रेडी, ठीक है, तो वो ज़्यादा पोटेंट होगा। और आप वो लिख के फिर उसके बारे में आप सोशल या फिर कोई भी नीश चीज़, अब सोशल से और अंदर मे बी इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, या जो भी अंदर की नीश टॉपिक का नाम लिख सकते हैं आप वो स्टेटमेंट लिख के, एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अ बेटर आंसर। सो सीक्वेंस ऑफ दी स्टेटमेंट्स टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट, कि आपको बोला कि कैसे पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है, तो या फिर एग्रीकल्चर इनकम कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले से ही रेडी करना है, क्योंकि ये डेफिनेट क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू अब अगर आप इस एंगल में कभी सोचे ही नहीं है प्रिपरेशन में, सीधा क्वेश्चन पेपर में जाके ये क्वेश्चन आया फिर आप सोच के लिखेंगे, तो क्योंकि रेस है ना ये, तो सब पहले से सोच के रखते हैं, वही ज़्यादा आगे होते हैं इसमें। तो आपको पहले से इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे बढ़ाएं, फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट से कैसे कम करें, स्टोरेज इश्यूज कैसे सॉल्व करें। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, उनके बारे में सोचना भी चाहिए। तो एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपको न्यूज़पेपर से कहीं भी आर्टिकल से, अच्छे आर्टिकल से आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि उनका जो अप्रोच होगा, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। उस आर्ग्यूमेंट का एसेंस आपको स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस में स्टोर करना है। अब ये बातें ऐसे बताने में आपको शायद समझ ना आए, या फिर कुछ लोग समझ जाएं। देखिए एक मुराकामी का कोट है, ठीक है, व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड विदाउट एक्सप्लेनेशन यू वोंट अंडरस्टैंड विद एक्सप्लेनेशन। तो चीज़ ये है कि आप ऐसे माइंडसेट के साथ मत रहिए कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जनरली बहुत लोग ऐसे माइंडसेट में होते हैं कि ये ऑलरेडी पहले से कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट कुछ लोग दिमाग को खोल के आगे जाते हैं, ठीक है, आगे कुछ टाइम बाद शायद चीज़ें बेटर समझ में आए। पहले से सोचते नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में ये लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और जो पहले से सोचते हैं कि ये समझेंगे हम, तो उनको समझ में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे सबका अपना अपना आइडिया होगा कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कैसे क्या चीज़ स्टोर करना है, और मेरा खुद का आइडिया है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से मैं मेरा तात्पर्य क्या है। तो वी विल एक्सप्लोर फर्दर अपने नोट्स बना के। नेक्स्ट चीज़ इज़ या नोट्स बनाने का सिलसिला चलेगा, स्टैंडर्ड सोर्सेज भी टॉपिक वाइज उठा के ख़त्म करेंगे। तो ये चलने वाला है, इसके साथ आंसर राइटिंग भी चलने वाली है, ऐसे एंड ऑप्शनल भी एड्रेस करेंगे। विल गो डीपर इनटू ईच ऑफ दीज एज वी फर्दर प्रोग्रेस, बिकॉज yeah, this is just a documentation of my own journey. This is no prescription, all right, this is my own documentation description. So thank you for listening, all the best, bye.